F2 is going to do? It will slow it down. It will decrease its magnitude. Slow down करेगा. Decrease magnitude of velocity. Yes. So it will decrease magnitude of velocity. F3 क्या करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. F3 सबसे इंपॉर्टेंट. सर F3 कुछ नहीं करेगा. कुछ तो करेगा बेटा. फिर समझ में लो. स्पेस में है हम. स्पेस में ऑब्जेक्ट चल रहा था. वी आर इन स्पेस. वी आर इन स्पेस. ऑब्जेक्ट जा रहा है डायरेक्शन चेंज करेगा. It will change the direction of motion. बहुत important है. Please याद रखना इसको. If force acts at right angles to velocity, it changes the direction of motion only. So F3 will change direction of motion only. F3 will change direction of motion only. ये कुछ और चेंज नहीं करेगा. ये भी लिख लो. And will not affect magnitude of velocity. Magnitude of velocity. ये velocity के magnitude को जरा भी affect नहीं करेगा. ये सिर्फ direction of velocity change होगा. Okay. Now there is a force F4 acting this way. What will be role of F4? ये F4 आपको क्या लगता है अंदर से क्या क्या कर सकता है? What F4 can do? सर स्पीड अप भी कर सकता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है. कर सकता है नहीं, करेगा ही करेगा. It has two components. एक component speed up करेगा, will increase the speed, plus एक component उसका direction of motion change करेगा, will change the direction of motion. Direction of दो चीजें करते हैं क्या? It will speed up plus it will change the direction of motion, right? What F5 is gonna do? तो उसको स्ट्रेट कर देगी. Down and change the स्ट्रेट हो जाएगा सब पूरा. Slow down and change. Straight कैसे बेटा? Straight का मतलब क्या होता है? इधर फोर्स लगेगा तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे. मतलब डायरेक्ट साउथ जाएगा. नहीं समझ रहा बेटा. डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा. एक तो स्लो भी होगा, आगे जाते स्लो होके ऐसा घूम जाएगा. डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगा और स्लो भी होगा, ऐसा जाएगा. राइट? तो will slow down, no doubt. Speed will decrease plus change the direction of motion. Right? Okay. Now, Newton's first law of motion gives us qualitative idea of force plus the word inertia. So let me describe inertia. बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड होता है. There's a word inertia. जूनियर क्लासेस में हमने खूब पढ़ा था. Inertia of rest, inertia of motion, उसमें inertia of speed, inertia of direction. सब फालतू की चीजें, बस एक ही inertia होता है. तो let's see what is inertia. Inertia what is important. ये आपको और भी कई चैप्टर्स में और कई जगहों पर मिलेगा अलग-अलग तरीके से. Right? So what is inertia? Inertia is the ability of every body with some mass to maintain its state of motion. Right? Inertia एक वर्ड दिया है किसके लिए? हर एक बॉडी के अंदर होता है inertia. हर एक बॉडी के अंदर inertia होता है. जिसका कुछ मास है उसके अंदर inertia होता है. क्या करता है inertia? वो inertia की वजह से ही वो state of motion maintain करता है. Right? एक ऑब्जेक्ट चलते जा रहा है, चल रहा है, चलते जा रहा है infinite time में. How it's able to maintain the state of motion? Because of inertia. तो inertia उस प्रॉपर्टी को बोला है. किस प्रॉपर्टी को? जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करता है.
राइट? सो इनर्शिया अगर कोई डिस्क्राइब करने बोले तो दो स्टेटमेंट्स में दूंगा इंटरेस्टिंग से. पहला स्टेटमेंट क्या दूंगा? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ every body, yeah, every object, obviously it should have some mass, with some mass, every object with some mass, by virtue of which it maintains its state of motion unless and until acted upon by external unbalanced force. ठीक. Inertia is the property of every object, ब्रैकेट में लिखा हुआ, with some mass, by virtue of which it maintains its state of motion unless until acted upon by external unbalanced force. ये इनर्शिया है जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करता है. अगर स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन नहीं करता तो सॉरी, अगर इनर्शिया नहीं होता तो अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन नहीं कर पाता. राइट? आ रही बात समझ में? Yes, sir. Hello. So inertia is the property of every object by virtue of which it maintains its state of motion unless until acted upon by external unbalanced force. अब देखो, inertia is due to what? Inertia is due to what? It is solely due to mass. There is no other factor which guides or governs inertia. कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता. इनर्शिया डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन इट्स मास. आ रही बात समझ में? Yes. मास ज्यादा है मतलब इनर्शिया ज्यादा है, मास कम है मतलब इनर्शिया कम है. राइट? सो if mass is less, inertia is less, and easy is to change its state of motion. If mass is less, inertia is less, and easy is to change its state of motion. If mass is more, inertia is more. सीधा सीधा mass से लेना देना. And difficult is to change its state of motion. inertia ज्यादा होगा तो रुके हुए को चलाना भी मुश्किल, और एक चीज चल रही है तो उसको रोकना भी मुश्किल. राइट? सो इफ मास इज लेस, inertia is less, and easy is to change its state of motion. If mass is more, inertia is more, and difficult is to change its state of motion. I hope आपको समझा. Right? Inertia has nothing to do with shape and size. Inertia has nothing to do with shape and size. उसको shape and size से कोई मतलब नहीं. ठीक है? 5 kg का छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा या 5 kg का बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा, दोनों का इनर्शिया सेम है, दोनों को चलाने में उतनी ही मुश्किल होगी, और चल रहा है तो उसको रोकने में उतनी ही मुश्किल होगी. ऑलराइट? सो इनर्शिया has something to do with mass. It's solely due to mass and nothing else.
Is it clear? Hello. Yes, Yes, sir. Next. See, इनर्शिया के बहुत सारे इफेक्ट्स आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे. इफ यू जंप आउट फ्रॉम बस, मूविंग बस, अगर चलती हुई बस से आप जंप करते हो बाहर, तो as soon as you land on ground, there is a high risk you will fall down in the direction of motion, right? वो क्यों? Due to inertia. That is due to inertia. कैसे? आप जंप किए कहाँ? ग्राउंड पर. ग्राउंड पे आप जंप किए, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, राइट? ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है और ग्राउंड के साथ, ग्राउंड रेस्ट पे है, वो भी रेस्ट पे हो जाता है, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. आप जब बस में चल रहे थे, बस के साथ आपकी बॉडी भी चल रही थी, तो जैसे आप जंप करते हो नीचे, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस मूविंग इन सेम डायरेक्शन, राइट? सो अब आगे की तरफ गिर जाता है, राइट? You're sitting inside a bus. Bus suddenly starts. You're sitting inside bus and bus suddenly starts. बस जैसे स्टार्ट हुई तो आपको पीछे की तरफ एक जर्क लगता है. क्यों जर्क लगता है? Why you feel that jerk? Hello. Sir, inertia of rest. इनर्शिया की वजह से बस सडनली स्टार्ट होगी. मेरी बॉडी रेस्ट पे थी, बस सडनली स्टार्ट होती, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद बस, वो बस के साथ आगे चल पड़ी, अपर पार्ट पीछे छूट गया. हमको लगता है जैसे किसी ने पीछे की तरफ पुश किया, राइट? बट एक्चुअली किसी ने पुश नहीं किया, वो तो अपनी जगह पे था और वो अपना नेचुरल चल रहा है. लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पे बस ने फोर्स लगाया और लोअर पार्ट को अपने साथ ले गया, तो अपर पार्ट वहीं पे छूट गया. तो वी फील दैट हमको किसी ने पीछे की तरफ पुश किया. सेम एज जब आप बस लेफ्ट टर्न लेती है, तो वी फील दैट हमको किसी ने बाहर की तरफ पुश किया, राइट? क्यों? हमारी बॉडी है स्ट्रेट जा रही है, बस सडनली ऐसे मुड़ गई, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद बस, वो उसके साथ चले, अपर पार्ट अभी भी सीधा ही जा रहा था, ऐसा लगता है किसी ने धक्का दे दिया बाहर की तरफ, राइट? सो दैट इज अगेन inertia. If you take a curtain or a bed sheet, give it a jerk, so the dust particle comes out of it. Why? जैसे आप उसको ऐसे लेके जाते हो, तो डस्ट पार्टिकल भी इधर जा रहे हैं, बट सडनली आपने शीट को नीचे पुल कर लिया, राइट? तो ड्यू टू इनर्शिया दे कीप ऑन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं. उसकी वजह से क्या होगा? दे विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द शीट. ओके, क्लियर है? ओके. Sir, all examples. ना एक और कहाँ बात करी, इसके बाद भी तुझे एग्जाम्पल लग रहा है? बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे. ये पेन है, राइट? अगर ये बुक के ऊपर पेन रखा हुआ, मैं बुक हटा दूंगा, पेन वहीं पे छूट जाता है. दैट इज व्हाई, ड्यू टू इनर्शिया. मैंने बुक हटा दी सडनली, राइट? तो क्या होगा? इसकी टेंडेंसी क्या है? वहीं रुके रहने की, तो वो वहीं रुका हुआ रह जाएगा, राइट? एंड बुक आगे निकल जाएगी. दुनिया भर के एग्जाम्पल है इनर्शिया के, आपके डेली लाइफ में इनर्शिया भर के. हेलो, हाँ sir. नहीं फील हुआ इनर्शिया? प्रॉब्लम कहाँ आ रही? तो बस वाला भी एक एग्जांपल है, मतलब जब बस स्टॉप होती है तो हाँ, बस रुकेगी तो क्या होगा? द मोमेंट द बस comes to rest, lower part of the body comes to rest with bus, but upper part of the body keeps on moving in the same direction with same speed, right? तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आगे की तरफ धक्का दिया. All right? यस सर. क्या हो गया चिन्मयी? चल, आई होप समझ में आ गया सबको ना. इनर्शिया का एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है.
इनर्शिया किसको बोलते हैं? इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस, इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस offered by any object to the cause which tends to change its state of motion. ये भी इनर्शिया के बारे में एक अच्छा स्टेटमेंट है. इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड. इनर्शिया is the resistance offered by any object to the cause which tends to change its state of motion. एक हेवी सा टेबल है, आप उसको पुश करोगे, आप उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो आपको रेजिस्ट करता है. इट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस. जो भी उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करेगा ये उसको रेजिस्ट करता है. दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज नोन एज इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी, एनी बॉडी, टू द कॉज व्हिच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. जो भी उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करेगा ये उसको रेजिस्ट करता है. इज इट क्लियर? So that resistance offered is known as inertia. Okay. Yes. ये स्टेटमेंट नहीं क्लियर हुआ? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर. ठीक, हर चीज के अंदर इनर्शिया था. अच्छा, टू बी प्रिसाइज, आपके दिमाग में भी इनर्शिया होता है, राइट? आपके दिमाग में भी इनर्शिया होता है. आपका दिमाग क्या बोल रहा है? जितना उसको आता है उतना ही आने दो. एक्स्ट्रा बढ़ाने जाओगे तो दिमाग रेसिस्ट करता है पहले, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा. पर मेरे बहुत एफर्ट लगाने के बाद या टीचर या बुक के बहुत एफर्ट लगाने के बाद फिर वो जाके उस चीज को एक्सेप्ट करता है. नहीं, ऐसा रियलाइज नहीं किया कभी? कभी कभी मेरे 3 बार बोलने के बाद में समझ में आता है, कभी कभी उसमें भी नहीं समझ में आता, फिर बुक से पढ़ने में समझ में आता है, राइट? तो क्या मैं गलत बता रहा था? नहीं, मैं तो वही बता रहा था. बट वो दिमाग में भी इनर्शिया होता है. जितना उसको आता है, जो उसको समझ में आ रहा है वो वही मेंटेन करना चाहता है. अगर मैं कुछ चेंज करने जाऊंगा तो इट ऑफर्स दैट रेजिस्टेंस. वो रेजिस्ट करता है. ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया और उसने समझ लिया और खुद से मान लिया, राइट? सो इनर्शिया इज एवरीवेयर. आपकी कुछ हैबिट्स हैं, आपके पेरेंट्स उसको चेंज करना चाहते हैं तो यू ऑफर सम रेजिस्टेंस. नहीं मुझे नहीं करना, मुझे ऐसे ही रहना है, राइट? सो देयर आल्सो देयर इज इनर्शिया. सो एवरीवेयर देयर इज इनर्शिया, राइट? हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया होता है. अगर आप बोलोगे उसके कान में जाके बेटा चलना चालू कर दो तो वो चलेगा नहीं. आप उस पर फोर्स लगाओगे, वो रेजिस्ट कर रहा है, राइट? तो दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज नोन एज इनर्शिया. कई लोग इस रेजिस्टेंस ऑफर्ड को फ्रिक्शन से मिक्सअप कर लेते हैं. वो कैसा सोचते हैं? हाँ सर आपने एकदम सही बोला, यहाँ पे एक टेबल रखा होता है, हम उसको पुश करने की कोशिश करते हैं तो इजीली चलता नहीं. मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ. ये टेबल अगर स्पेस में होती, इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, राइट, तो आप बस जरा से टच कर दो, ये चलना चालू कर देता, ये भी चलना चालू कर देता. इफ देयर वाज अ ह्यूज टेबल इन स्पेस, इट वाज नॉट ऑन एनी सरफेस और कोई ग्रेविटी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, आप एक बड़ा सा टेबल देख के बस ऐसे टच कर दो, आप इधर चलने लगोगे, वो उधर चलने लगेगा, राइट? एंड यू विल नेवर बी एबल टू टच द टेबल अगेन. फिर आप कभी दोबारा टेबल को टच भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो आप बोलोगे तो सर इसमें रेजिस्टेंस कहाँ आया? रेजिस्टेंस तो जो हमने सोचा था आपने चीज ही बदल दी. ऑलमोस्ट सबने सोचा होगा शायद कि वो ग्राउंड पे रखा हुआ टेबल और टेबल को पुश करते हैं तो चलता नहीं है जल्दी से. सबने उसको रेजिस्टेंस माना था. इसी को माना था क्या रेजिस्टेंस सबने? या मैं गलत सोच रहा हूँ? हेलो? हाँ सर. तो ये जो चला नहीं ना, हाँ, वो रेजिस्टेंस इनर्शिया नहीं है, वो तो फ्रिक्शन है. इस पे लेग्स ऑफ द टेबल एंड फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है, उसकी वजह से वो चल नहीं रहा है या मुश्किल से चलता है. स्पेस में तो बस टच करते आप चलने लगता था,
आप भी चलने लगते थे अपोजिट डायरेक्शन, आपने ऐसा टेबल को टच किया, टेबल इधर मैं इधर, फिर स्पीड बढ़ानी आपको, टच करने से चल तो पड़ेगा बट इतना स्लो चलेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कुछ चल रहा है, इतना स्लो जाएगा। तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो ऐसा मतलब पुश करना पड़ेगा, चलने तो लगेगा वो, न्यूटन सेकेंड लॉ आते आते आपको समझ में आ जाएगा। मैं कितना भी थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा, इवन इफ आई टच इट, इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बट वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लानी है, वो चीज लानी है, मतलब दिखे कि हाँ चल रहा स्पीड से, वो लाना है तो नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी आपको नहीं फील होगा, मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन से फील कराता हूं। आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, I have two objects in space. एक है 50 kg का और एक है 2 kg का। I have brought both of them in motion. हाँ, ये है समझो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, and even this is moving at 100 meter per second speed. If I ask you to stop one of the two, which one will you prefer? मैंने बोला दोनों में से किसी एक को आपको रोकना है, किसको रोकना प्रेफर करोगे, 50 kg या 2 kg? सॉरी 2 kg। क्यों भाई, 50 kg ने क्या बुरा किया? सोचो आपके अंदर, आप इंस्टिंक्ट्स आपके बोल रहे हैं, मास ज्यादा है तो क्या ज्यादा है? इनर्शिया ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो फिर उसको स्टॉप करने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हेलो, यस सर। अभी आपके अंदर से आवाज आई इनर्शिया ज्यादा है, हाँ सर। आई आवाज? यस। सॉरी, उसके बाद आपके अंदर से आवाज आई रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वही रेजिस्टेंस है, शायद आपको विजुलाइज हुआ होगा अभी, ये ज्यादा रेजिस्ट करता है, जो कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा, दिस ऑब्जेक्ट ऑफर सम रेजिस्टेंस, राइट? ये इतना आसानी से, ये जितनी आसानी से रुक जाएगा, ये नहीं रुकेगा, ये रेजिस्ट करेगा, आपको घसीटता हुआ आगे ले जाएगा, कहीं दूर जाके आप फिर उसको रोक पाओगे, तो वो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, वो फ्रिक्शन वाले रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना भी मुश्किल, और अगर वो स्पेस में 50 kg होगा, साइड में 2 kg, तो 2 kg को एक स्पीड पे लाना बहुत आसान है, 50 kg को वो स्पीड देना मुश्किल होगा, राइट? यू नीड टू अप्लाई मोर एंड मोर एफर्ट टू ब्रिंग 50 kg to the same speed as the object of 2 kg, right? Yes sir. Hello. So यहाँ पे वो रेजिस्टेंस क्लियर, तो ये 100 मीटर पर सेकंड से, ये भी 100 मीटर पर, ये रोकना बड़ा आसान है, ये रोकना बड़ा मुश्किल है। क्यों? 50 kg है, इसका मास ज्यादा है, तो क्या हुआ? इनर्शिया ज्यादा है, तो क्या हुआ? इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस, वो इतने प्यार से रुकने वाला नहीं। ठीक है, सो विद दिस स्टेटमेंट आई विल से इतना ही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में समझने और समझाने के लिए। बाकी फिर ट्रिक क्वेश्चंस और बहुत सारे घुमा घुमा के तो कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। जैसे समझो मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, अर्थ पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसका मास है 50 kg, इसका मास है 50 kg, दिस इज एट रेस्ट। इफ आई आस्क यू कि ग्राउंड इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, कैन यू गेस कितना लगा रहा है? ग्राउंड इस पे कितना लगा रहा है? ये छोटा सा सैंपल क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। ग्राउंड तो फिर तो एक्सेलरेशन लग रहा है ना 10 न्यूटन। ग्राउंड इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? ग्राउंड इस पे कितना फोर्स लगा रहा है सोचते हैं। इस पे अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगा 500 न्यूटन, क्या है उसका वेट है, कहां से आया है, डेफिनेशन है, हा? अगर आपको पहले से आती तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, तो अब 500 न्यूटन नीचे लग रहा है, ये अर्थ खींच रहा है उसको अपनी तरफ, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ये एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा, उतना ही, तो ये ऊपर की तरफ 500 न्यूटन, तो अर्थ उसके ऊपर 500, सरफेस उसके ऊपर 500 न्यूटन ऊपर फोर्स लगा है। चलो कोई नहीं, ये जान दो, ये नहीं समझा तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक सब इजी था और आपको समझ में आया। Yes, sir. हेलो, जी सर। ठीक है, चलो आई विल स्टॉप हियर।